बहुत लोग इस एज ब्रैकेट ऑफ 37 टू 45 में भी होते हैं और वो भी मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि सर इससे क्या मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा क्या भी बिकॉज आप मेरी गलतियों से सीखेंगे। ये यार मैं मानता हूँ कि मेरे मेंटरशिप सेशन का ये चीज क्या है अबाउट सीएफए इज यार दैट इट हैज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इट गिव्स upside to everyone and anyone, so don't worry about it at all. Now understand our superpowers. As humans we have superpowers. If we are intentful about few things, we can actually cover both the things together. Bhagyashree is not the one who is doing CFA along with CA. There are hundreds and thousands like Bhagyashree who I have taught in the past who have done both CA and CFA. Similarly, there are hundreds like you and me who are engineers by background and have also done finance. Important thing is yaar, you should pursue these courses with lot of conceptual bent of mind. आपको रट के एग्जाम नहीं करना है, ना तो एग्जाम निकलेगा ना करियर बनेगा. At least that is how I focus in my course structure. But you should remember that yaar, if you have a logical bent of mind and you are not here to mug up things and vomit in the exam, then CFA you can very well do with your MBA as well. And Nitish, I will come to you next. You can also do with your MTech as well, right? So no problems at all. I had done it right after my BTech. A lot of students who join my sessions are from MCA background, MTech background, CA background, commerce background, right? So don't worry about it at all. You can very well clear finance along with your MTech as well. So no problems on that. Yes. अंडरस्टैंड दिस यार एंड टेक इट फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन MBA. मैंने पढ़ाई जिंदगी में बहुत करी है, तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा है, इस चीज़ का बहुत आनंद है क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की आपको उससे सिखा सकता हूँ. क्योंकि मैंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर IIM इंदौर से MBA किया, फिर तीनों लेवल्स CFA के किए, तो मैंने पढ़ाई बहुत कर रखी है और आपको सारों के फैसेट्स बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अब इन फील्ड्स में काम करते हुए 10 साल से ऊपर हो गया, 12 साल टू बी एग्जैक्ट. तो मैं आपको फैसेट्स बता सकता हूँ यार. CFA today, and this is for everyone on the call today यार, hear from me loud and clear because आप मेरी गलतियों से सीखेंगे. ये यार मैं मानता हूँ कि मेरे मेंटरशिप सेशन का ऑब्जेक्टिव that please understand that with your current background, first of all you should be very proud of what you are doing right now. कभी कभी हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं but we have become very self critical of ourselves. Don't be that. If you are doing MTech and you are planning to get into one of the IITs to do your MTech, that is super. Bhagyashree, if she's planning to do CA, which 3-5% people get qualified, it is super. But yes, yaar, understand your superpower that you both have, or all of you on this call today have a very good logical frame of mind. And you can very easily, if you study correctly, logically, conceptually, contextually, मतलब बहुत सारे practical examples के साथ अगर आप ये concepts को देखोगे तो आप बहुत easily CFA भी साथ साथ निकाल सकते हैं. गुड पार्ट अबाउट MTech इज यार दैट इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप MBA करने जा रहे होते तब तो मैं आपको क्वेश्चन मार्क डाल देता कि भाई देख लो MBA का तो ROI मैंने तो नहीं देखा. टुडे इफ यू हैव टू डू योर MBA फ्रॉम IIM इंदौर, इट विल कॉस्ट यू 30 लाख रुपीज. व्हेन आई डिड माय MBA बैक इन 2010 टू 2012 फ्रॉम IIM इंदौर, इट कॉस्टेड मी 13 लाख रुपीज. तो महंगा एग्जाम है यार. वही 2-3 लाख रुपए में CFA होकर अगर आप वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने काफी सारे फ्रेंड्स एंड पीयर्स को दैट दे रीच द सिमिलर पोजीशन आफ्टर डूइंग CFA, then why do you want to spend 20-30 lakh rupees when you can achieve the similar thing 2-3 lakh rupees, that to a global degree, right? So आप definitely कर सकते हैं. So I would say यार that given that you have prepared so well, that you have come here with so much confidence कि सर मेरे mock exams बहुत अच्छे जा रहे हैं, MTech हो ही जाएगा. MTech is not very expensive unlike MBA. I have after my engineering done CFA and I have clearly seen the advantages of it. आप भी कर सकते हैं. My only word of advice is start early. Start the preparation for CFA early. The sooner you start, you will have a much better head start vis-a-vis your peers. And एकदम भी आप मत घबराओ. The course is very logical. If you are reading it conceptually and if you are taught this conceptually, which I believe I put it in my courses, then very easily in just 6 months and 90 minutes of time investment, you will be able to clear the exam with flying colors and add a global brand on your resume. अभी तक बस आप स्टार्ट नहीं कर रहे थे, इनर्शिया में थे. एक बार स्टार्ट करेंगे, बोलते हैं ना, एक बार चक्के को घुमा दो तो फिर वो चक्का घूमता रहता है. दैट इज हाउ इंडिविजुअल्स like us and all of us are.
द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ क्विकली कैन यू स्टार्ट। सर मेरा क्वेरी सर ये था, जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि यंग एज में आप अगर स्टार्ट करते हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू, या बट बीइंग इन लेट 30s, जैसे Yeah. कि मेरे एग्जैक्टली मैं अराउंड 32 के अप्रॉक्स में हूँ, तो करेक्ट। क्या ये मेरे लिए सही रहेगा CFA करना? पहला Very क्वेश्चन good. सर ये। सेकंड क्वेश्चन सर कि इसमें जो हमारा बैकग्राउंड है कॉमर्स का, हाँ। उसमें बेसिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मैं CFA का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो? ठीक है, बोल रहे हैं कॉमर्स कैसे आपको जो है हेल्प करेगा इस पूरे मतलब preparation बेसिक्स, में? हाँ कॉमर्स कैसे हेल्प करेगा जो मैंने और कॉमर्स में पढ़ी सर। हाँ तो आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, राइट? ऑलमोस्ट 20%। और मैं यार बहुत, देखो मैं एनालिस्ट रहा हूँ, मैंने खुद भी फाइनेंस कर रखी है। मुझे हमेशा लगता है कि नंबरों में जब बात करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है सबको समझना। 20% जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं यार हर साल, 20% मतलब 5 में से 1। Out of 5 students which take up my course, one of them are in their early 40s और late 30s। आप जैसे 32 हैं, बहुत लोग इस एज ब्रैकेट ऑफ 37 to 45 में भी होते हैं। और वो भी मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि सर इससे क्या मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा क्या? जहाँ भाग्यश्री जाएंगी जो तो यंग एज ऑफ 22 में है, वहीं से मुझे भी शुरू करना पड़ेगा क्या एट द एज ऑफ 32? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। Why? Because yes, from a brand perspective or certification perspective, both Bhagyashree and you will be at a same stage. भाग्यश्री के पास भी लिखा होगा CFA level 1, आपके पास भी CFA level 1, बट आपके पास एक सुपर पावर है जो हम लोग जनरली निगेट कर देते हैं। याद रखिए यार, जब मैं रिक्रूटर हूं तो मैं 2 चीजें देख रहा हूं, काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म। काबिलियत तो आपके ब्रांड से ही आती है ना। अब मैंने बोला सर मैंने फाइनेंस, आई एम वेरी इंटेंटफुल अबाउट फाइनेंस, वो बोलेगा भाई कैसे पता? नहीं सर आप मेरे से इंटरव्यू ले लीजिए। बोला भाई इतना टाइम नहीं, आई कांट कॉल 1000 पीपल टू इंटरव्यू एंड देन सेलेक्ट हु आर पैशनेट, सो आई विल लुक फॉर अ ब्रांड ऑन योर रिज्यूमे। ब्रांड है तो ग्रेट, नहीं है तो आई डोंट गिव अ डैम यार, आई डोंट हैव टाइम। दिस इज हाउ रिक्रूटर्स थिंक। और आपको उनकी विडंबना भी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन एज वेल, बिकॉज फॉर एवरी जॉब प्रोफाइल विच इज ओपन इन द मार्केट देयर आर 1000 पीपल हु आर अप्लाइंग, नॉट लेस देन 1000 पीपल। अब वहां पर यार 5, 7, 10 रिक्रूटमेंट करनी है उस प्रोफाइल के लिए और आपके पास 1000 एप्लीकेशन आ गया है, तो भाई आप कैसे करेंगे? तो वहां पर सिंपल CFA टाइप होके फिल्टर का बटन दबता है, वो 1000 प्रोफाइल चंद 100 प्रोफाइल्स बन जाती है। पहला नंबर 1, तो इसको बोलते हैं आपके स्किल सेट का परीक्षा, राइट, और एग्जामिनेशन ऑफ योर स्किल सेट। तो वहां तो भाग्यश्री और नीतीश आप दोनों की प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगी। बट हियर इज द फन फैक्ट यार, जो हम लोग नहीं रियलाइज करते हैं, शुभदीप और नीतीश आप लोग थोड़ा सा उसको दरकिनार कर रहे हैं, कि यार आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय प्रोफेशनल लाइफ में काम किया। प्रोफेशनल लाइफ से जब मैं रिक्रूटर देखता है कि आपके पास 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है इतना है, तो वो बोलता है कि भाई इसके वर्क एथिक्स स्ट्रांग है, राइट, इसमें एक मैच्योरिटी है, एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग और टीम वर्किंग की एक काबिलियत होगी, एक टीम मैनेजमेंट की काबिलियत होगी। ये 4-5 ही चीज़ों की काबिलियत है जो शायद अभी भाग्यश्री में नहीं है, क्योंकि भाग्यश्री तो अभी आई हैं। तो हेंस जब मैं आपको ऑफर देता हूं और जब मैं भाग्यश्री को ऑफर देता हूं, ऑफर तो दोनों को मिल सकती है क्योंकि दोनों के पास ब्रांड है, दोनों के पास स्किल सेट्स हैं, बट जब मैं ऑफर देता हूं तो बाय डिजाइन जिन पे वर्क एक्सपीरियंस होता है, भले वो फाइनेंस में ना हो वर्क एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं, बट बिकॉज ऑफ द 5 एट्रीब्यूट्स विच पीपल विथ वर्क एक्सपीरियंस ब्रिंग टू द टेबल, आई गिव देम 25 to 40%। अब ये रेंज है यार, इसमें कोई एक नंबर नहीं है कि सबको 25 ही मिलेगा या 40 ही मिलेगा। 25 to 40% का एक ब्रैकेट होता है जिससे आपको ऊपर मिलती है सैलरी। तो अगर फर्ज कीजिए भाग्यश्री को X सैलरी मिलती है तो आपको X into 1.25 मिलेगी, 25% ज़्यादा या 40% ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन आप अपने स्किल सेट्स को कैसे इंटरव्यू में दिखाते हैं, वो हर किसी की अलग अलग काबिलियत होती है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एट्रीब्यूट जो कि आपको गूगल करने से, जेनरिक एडवाइस लेने से नहीं मिलती। अब मुझे इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो भाई मैंने अपने काफ़ी कंपनियों में जहाँ काम किया है वहाँ रिक्रूटमेंट भी की है, बहुत क्लोजली रिक्रूटमेंट को देखा भी है अपनी टीम्स में होता हुआ। तो मैंने ये देखा है यार कि किस तरीके से कंपनीज इस चीज़ को इवेल्युएट करती हैं। सो दिस शुड गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज दिस इज द नंबर 1 क्वेरी of anybody यार who has reached the age of 30 plus।
हर के दिमाग में यही होता है, सरल सरल भाषा में बोलें तो उनके दिमाग में होता है कि सर क्या ज़ीरो से स्टार्ट करना? तो इसका आंसर है एब्सोल्यूटली नो। दैट इज़ नंबर 1। और आपने जो अभी तक काम कर रखा है, उसको हल्के में मत लीजिए। दैट इज़ अ सुपर पावर व्हेन अ रिक्रूटर इज़ लुकिंग एट। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा सर कॉमर्स बैकग्राउंड को हेल्प होगी? 100% होगी यार। थिंग्स लाइक इकोनॉमिक्स, सम बिट ऑफ अकाउंटिंग एक्सेट्रा, यू वुड हैव ऑलरेडी सीन इन योर कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड हेंस यार दैट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके CFA में भी हैं।